अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन, मिरर एंड लेंसेज। एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर्स, रियल एंड virtual image, lenses and prism. So let's start our chapter. Rectilinear propagation of light. Light travels in a straight line through a transparent homogeneous medium. This property of light is called rectilinear propagation. Students, this is the basic property of a light, that light always travel in a straight line, and this basic property is also known as rectilinear propagation of light. Reflection of a light. The phenomenon of bouncing back of light is called reflection of light. स्टूडेंट, हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? जब हमें ऑब्जेक्ट कब नज़र आता है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है. ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट्स फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स. दैट्स वाई वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी इन द फिगर, a ray of light falling on water surface is incident ray and the ray reflected off the surface is called reflected ray. जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जो बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट while changing its direction. Clear? Plane mirrors. We use all plane mirrors to see our image in it. Anything kept in front of a plane mirror is known as object. The view of the object formed by the reflection inside the plane mirror is called the image of the object. The image formed by a plane mirror always appear inside the mirror. An image which cannot be taken on screen is virtual image. Students, you daily take a look in the mirror before going to school or any other place. आपने कोई भी काम करना होता है, पहले अपने आप को शीशे में अच्छी तरह देखते हो. So the mirror in your house is plane mirror. और जो इमेज बनता है वो मिरर के अंदर बनता है, और जो मिरर के अंदर इमेज बनता है, द इमेज इनसाइड द मिरर इज, वो रियल इमेज नहीं होता, उसको हम virtual image कहते हैं. So the image which you see in the mirror is virtual image, and the image you see in the TVs, movies में जो आप इमेज देखते हैं वो रियल इमेज कहलाता है. रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे बनता है, लेकिन virtual image is found inside the mirror, so they do not need any screen. अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपको वैसा ही इमेज अपना नज़र आता है. सो दैट इमेज इज़ इरेक्ट. सेकेंड है, साइज़ ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, इमेज भी आपको उतना ही नज़र आता है. छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इक्वल होता है. लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड रखते हैं, ठीक है, तो आपको मिरर, इनसाइड द मिरर आपको लेफ़्ट अपना इमेज नज़र आता है. सो राइट आपको लेफ़्ट नज़र आता है और लेफ़्ट अपीयर होता है राइट. तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं. स्फेरिकल मिरर्स. Curved mirror are also called spherical mirrors. Spherical mirrors gives us image that are magnified or diminished. They can be of two types. So student, if we break a curved mirror into two pieces, so that become a spherical mirror, and it has two types, convex mirror and concave mirror. Convex mirror, a mirror whose reflecting surface curved outward, is called a convex mirror. स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर की कि ये अपना इमेज बाहर की तरफ जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. बाहर वाली जो सरफेस है वो क्या कहलाएगी? कन्वेक्स मिरर कहलाएगी. कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज देते हैं देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. Concave mirror, a mirror whose reflecting surface curve inward is called a concave mirror. Example, inner surface of a spoon act like a conveyor mirror while its outer surface acts like a convex mirror. Okay students, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. concave mirror क्या है? इसकी reflecting surface इनसाइड है, ठीक है, और convex mirror की क्या है? आउटसाइड है. तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस है. कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटसाइड है, और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनसाइड द मिरर है. आप स्पून की इमेज भी देख रहे हैं कि इनवर्ड जो है वो क्या कहलाएगा? कन्वेक्स कहलाएगा, और आउटसाइड द सरफेस कनकेव कहलाएगी. Uses of concave mirror. A dentist used to see magnified image of teeth, used in headlights of cars, searchlights, torches to apply makeup and shave, used as magnifiers in movie projectors. तो स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो या लार्ज होती है या स्मॉल, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट कितने फासले पर है. तो डेंटिस्ट जो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं टू लुक इनसाइड योर माउथ, आपका दांत इस्तेमाल करने के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो वो जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है आपका मैग्नीफाई इमेज देखने के लिए, वो कनकेव मिरर कहलाता है. इसी तरह ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? टॉर्च, बाइक और इनके हेडलाइट्स में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट, यूज्ड एज सेफ्टी मिरर्स इन स्टोर्स एंड मॉल्स.
हमने बात की कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? साइड मिरर्स में, व्हीकल्स के साइड मिरर में ये यूज़। Lenses. Glass with a curved surface is called lens. A transparent medium bounded by two surfaces of which at least one is spherical is called a lens. We have two types of lenses. स्फेरिकल सरफेस ऑफ ग्लास क्या कहलाती है? लेंस। इसकी दो टाइप्स हैं, कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस। कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस, दिस टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर नियर इट्स टू एंड्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, कन्वेक्स लेंस की पिक्चर देखें, इसका जो मिडिल पॉइंट है ये थोड़ा मोटा है, थिक है, जबकि इसके एंड क्या है वो थिन है, और ये लाइट को एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे फोकस करता है, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग और या कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस, दिस टाइप ऑफ लेंस इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर नियर इट्स टू एंड्स। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आप पिक्चर में देखें, ये इसका जो मिड पॉइंट है ये थिन है, जबकि इसके एंडिंग पॉइंट क्या है? थिक है, और ये लाइट को हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कनकेव और कन्वेक्स लेंस, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस हैं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? टेलीस्कोप में, ये जो आप चश्मे पहनते हैं इनमें, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप में इनको इस्तेमाल किया जाता है। Prism. Prism is a transparent triangular shaped glass with two clear plane surfaces. White light after falling on one surface of the prism split into colors. There are lines of 7 color in white light spectrum. ये तो आप जानते हैं कि सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, और जो रोशनी, जो लाइट सूरज से आती है दैट इज़ वाइट इन कलर। और प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। इसके जब एक एंड पे, एक सरफेस, एक साइड पे वाइट लाइट गिरती है तो दूसरी साइड पे ये स्कैटर्ड हो जाती है इनटू 7 कलर्स। तो वाइट लाइट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। वाइट लाइट जो 7 कलर का बैंड बनाती है इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। As you can see in the slide, sunlight is falling on the slit prism पे जब fall करती है then it split into 7 color. So white light is mixture of 7 color. न्यूटन ने इसे बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। न्यूटन डिस्क, उसने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर उसने इक्वल सेगमेंट्स में, ठीक है, 7 कलर्स को उसने पेंट किया और उसको ज़ोर से घुमाया। उस डिस्क को जब उसने ज़ोर से घुमाया तो दैट डिस्क अपीयर्ड वाइट, वो बिल्कुल वाइट नज़र आई। तो इससे ये प्रूव हुआ कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। सब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बात की प्लेन मिरर्स की, स्फेरिकल मिरर्स की, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी